So today we are going to discuss about the Bernoulli equation. So as shown in figure, suppose this is our pipe, left side portion and right side portion. In this case, there is something height h1 from this surface, we can say as a earth. Similarly for this portion, this is your h2. Diameter of this wire, or we may say as the area of this wire a1, another one which is a2. Suppose the fluid which is come from this one, that means we can consider as a like this one, the fluid which is carrying from this portion to this portion. Okay, so therefore which is having something velocity, we can say as a velocity v1, another portion which is v2. The pressure of one end we can say as a p1 and another end which is our p2. Chalo. Now from the figure configuration, left side of the pipe, so left side of the pipe, what we have to discuss? We have to discuss about the pressure. So pressure P1 is equal to, हमारा इक्वेशन कौन सा आएगा? Pressure P1 is equal to क्या आएगा? F1 divided by A1. So therefore we have to discuss about the force 1. So what is the equation of force 1? Force 1 is equal to P1 A1. This is your equation number 1. Similarly, right side. So therefore right side of pipe, so that means this portion, the pressure is P2, so therefore our equations will become, हमारा equation कौन सा होगा? P2 is equal to F2 divided by A2. So therefore force F2 which is equal to P2 multiplication of A2. So this is your equation number 1, you can say. This is your equation number 2, you can say. Chalo now what we have to discuss? We have to discuss about the work done. As we discussed in the chapter number 6, work done which is equal to force multiplication of क्या आएगा? Displacement. बस तो उसकी बात करनी है हमें. चलो, so therefore जनरल इक्वेशन हम लिख दे, the work is equal to force multiplication of displacement. ठीक है? चलो, so for therefore work done we can say as a W1 force 1 multiplication of, मतलब क्या होगा? F1 into D1. So therefore you already have the value of this F1. So F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? P1 A1 into क्या होगा? D1 as it is already available. So force 1 की जगह पे हमने क्या पुट किया? P1 A1 and D1 which is our displacement which is as it is. Now as we know that A1 into D1, what we can write? This is your delta V1. Volume बोल सकते हैं हम. So P1 which is equal to delta V1. And ये W1 को हम क्या बोलेंगे? Work done by fluid. And another one क्या होगा? Work done on fluid. मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेने तो another one we have to consider as a negative. ठीक है? So therefore W2 is equal to इधर क्या आ जाएगा? That will be the negative sign. चलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? F2 into D2. चलो so therefore minus as it is, what is value of F2? From the equation number 2 क्या बता सकते हैं हम? P2 into A2. So therefore P2 into A2 into D2. Now इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? A2 into D2. उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा V2. So therefore minus P2 into delta V2. But what we have to discuss? We have to discuss about the total work. So total work which is equal W is equal to हम लिख सकते हैं W1 plus W2. ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन डिराइव किया हुआ है. W1 की वैल्यू ये है, W2 की वैल्यू ये है. ठीक है? So therefore क्या होगी हमारी वैल्यू? P1 delta V1 plus inside the bracket क्या होगा? minus P2 into delta V2. But as we know that यहाँ से जितना फ्लूइड डालेंगे उतना ही फ्लूइड इधर से निकलेगा. So that means what? Delta V1 is equal to delta V2 is equal to delta V. You have to consider inside the bracket इधर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? Delta V1 is equal to delta V2 is equal to delta V. तो यहाँ पे रिप्लेस करो. So therefore P1 delta V plus minus minus होता है वो तो हमें बताइए. इधर P2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? delta V2. चलो तो ये इक्वेशन इधर W है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. So W is equal to what we can take, इधर क्या हो गया? सॉरी डेल्टा V इधर लिखना पड़ेगा.
So delta V can be common, तो inside the bracket remaining क्या होगा P1 minus P2 bracket over delta V. So ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर A लिख सकते हो हम. कौन सा इक्वेशन होगा? इक्वेशन नंबर A. चलो. Now we have to discuss about the potential energy as well as the kinetic energy. चलो. So उसके लिए हम इधर ये हमें रफ करना पड़ेगा, पहले उसको रफ कर लेते हैं. What is the equation of kinetic energy? जनरल इक्वेशन आप मेरे को बताइए. Half mc square. Okay, and there is another concept about the potential energy. Potential energy का concept क्या है हमारा? Equations कौन सा होगा? mg है. ठीक है? चलो, so पहले इक्वेशन नंबर स्टार लिख देता हूँ आपके लिए. As we know that total energy, total work, which is equal to, we can write potential energy plus kinetic energy. ठीक है? ये हमारा इक्वेशन नंबर स्टार होगा. In this equation हमें जो A W की वैल्यू डिराइव की है, सेम वे हमें पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर स्टार में हमें पुट करनी है. देन आफ्टर वी गेट द बर्नौली इक्वेशन. चलो, सो रिगार्डिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी की पहले बात करें. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन एज वी डिस्कस क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2 हाफ mv². चलो, हमने लेफ्ट साइड क्वेश्चन में वेलोसिटी v1 कंसीडर किया था, अदर साइड v2 कंसीडरेशन किया था. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 v2 square minus 1 divided by 2 m v1 square. देखो ये m है, it can be common as well as 1 divided by 2 can be common. So 1 divided by 2 m as it is inside the bracket v2 square v1 square. इधर क्या ध्यान देना है? This is your velocity, not a volume. ठीक है? ये यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है and ये हमारी वेलोसिटी है, which you have to keep in mind. Now, as we already know that डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम को हमने डेल्टा V से डिफाइन किया है. सो डेल्टा V, इधर मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इज इक्वल टू रो इनटू डेल्टा V. दिस वैल्यू वी हैव टू पुट ओवर हियर. सो देयरफॉर इसको ब्रैकेट में लिख लो. इधर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 m की वैल्यू क्या है? रो डेल्टा V. दैट मींस दिस इज योर वॉल्यूम. ये हमारी वेलोसिटी है v1 स्क्वायर सॉरी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर B. ये हमारा इक्वेशन नंबर A है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर B. चलो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हिच वन? पोटेंशियल एनर्जी. सो एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशंस क्या होगा? mg है. चलो, जनरल इक्वेशन आप लिख देते हैं पहले. So therefore mgh you can write mgh2 minus mgh1. कौन सी वैल्यू सेम है? We can take a common. mg can be common. तो क्या हो जाएगा h2 minus h1. Now as we already discussed over here कि मास की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? रो into डेल्टा V. चलो, तो मास इधर है, उसकी जगह पे लिख दो रो डेल्टा V into g H2 minus H1. एंड ये कौन सा इक्वेशन होगा? ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर C. A, B एंड C की वैल्यू हमें ये इक्वेशन में पुट करनी है. W की वैल्यू हमारे पास ये है. देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर B है एंड पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वी हैव टू पुट ओवर हियर. चलो, तो ये हर एक वैल्यू में रफ कर लेता हूं पहले. इक्वेशन नंबर A वो यहां पे पुट करना है. So W is equal to क्या हो जाएगा? P2 P1 minus P2 क्या हो जाएगा? P1 minus P2 डेल्टा V. चलो, which is equal to पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो मैं इक्वेशन नंबर काइनेटिक एनर्जी का पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, वो भी चलेगा. So 1 divided by 2 रो डेल्टा V inside the bracket V2 square minus V1 square. अभी इसका कुछ काम नहीं है, उसको निकाल दो. सिमिलरली ये इक्वेशन का भी अभी कुछ काम नहीं है, इसको भी निकाल दो. चलो, रिमेनिंग वन जो है ये इक्वेशन यहां पे प्लस करके हमें ऐड करना है. दैट मींस क्या हो जाएगा? रो डेल्टा V क्या हो जाएगा? H2 minus H1. इधर मैं लिख देता हूं H2 minus H1. रो डेल्टा V. रो या यहां पे क्या हो जाएगा? रो G into डेल्टा V. Now you can observe over here the value of the delta V. हर एक साइड से कट हो जाएगा. देखो यहां पे डेल्टा V और यहां पे डेल्टा V. सो अभी हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? P1 minus P2 which is equal to
रो 1d8/2 रो इधर क्या है v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो ब्रैकेट भी ओपन कर लो साथ साथ में क्या हो जाएगा रो g h2 माइनस रो g h1 ठीक है यहां पे भी कर लेते तो चलेगा अभी दूसरे स्टेप में करना पड़ेगा दैट मींस p1 माइनस p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1d8/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1d8/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h2 माइनस रो g h1 इधर तक आ जाएगा देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू एक साइड 1 वाली जो टर्म है उसको सेपरेटली कर लो एंड 2 वाली टर्म को इज इक्वल टू द अदर साइड कर लो देन वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन सो देयरफॉर देखो ये 1 वाली टर्म है एंड ये भी 1 वाली टर्म है तो इज इक्वल टू के दूसरे पार आ जाएगी और ये p2 है वो अदर साइड हो जाएगा सो देयरफॉर इधर p1 ऑलरेडी है माइनस का इधर प्लस हो जाएगा सो 1d8/2 रो v1 स्क्वायर ये माइनस है साइड चेंज हो गई दैट मींस इट इज पॉजिटिव रो g h1 व्हिच इज इक्वल टू ये -p2 है साइड चेंज हो गई बिकॉज़ ऑफ दैट रिजल्ट यू हैव टू राइट p2 प्लस क्या हो जाएगा ये टर्म तो ऑलरेडी आपकी पॉजिटिव ही है सो देयरफॉर 1d8/2 रो v2 स्क्वायर प्लस दिस वन इज आल्सो एज इट इज रो g h2 एंड दिस इक्वेशन इज सेड एज ये कौन सा इक्वेशन हमारा आ गया बर्नौली इक्वेशन ठीक है चलो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन रहेगा सपोज हम जनरल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं p प्लस 1d8/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट ठीक है चलो अभी एक केस की बात करें हम when our fluid which is at the rest condition आगे वाले केस में हमने क्या कंसीडर किया v1 and v2 कुछ वेलोसिटी हमने कंसीडर की but right now we are what we are assuming that the fluid which is at the rest condition so when your fluid is at the rest condition तो रेस्ट कंडीशन के लिए एक कंडीशन कौन सी होगी v1 is equal to v2 is equal to क्या हो जाएगा 0 so that means in the Bernoulli equation जहां पे v1 and v2 ही अगर दिख रहा है आप लोगों को v1 and v2 वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी चलो तो हमारा इक्वेशन क्या होगा वो डिराइव कर लेते हैं सो p1 प्लस ये वाला इक्वेशन तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस रो g क्या है h1 चलो which is equal to p2 इधर क्या होगा v2 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 तो 0 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो प्लस रो g h2 चलो तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक सपोज ये p2 को इधर लेके आओ और ये वैल्यू अनदर साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा p1 माइनस p2 व्हिच इज इक्वल टू रो g h2 एज इट इज ये टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रो g h1 तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा आपको भी पता होगा क्या निकलेगा कॉमन Rho g can be common and your equation will become this one. But this Bernoulli equations की एक limitation है. We can only apply when your fluid which is incompressible. क्या fluid जो होगा हमारा incompressible होगा then and then we can apply this Bernoulli theorem. ठीक है?